excited today to have my beautiful sister all the way from Pakistan, Rebecca. मैं एक दफा फिर से बहुत पुरजोश हूँ अपनी प्यारी बहन रुबैका के लिए जो कि पाकिस्तान में रहती है। Today we will be studying a new series called The Blood of Jesus, and today is the part 1. आज हम सीरीज का एक नया सिलसिला शुरू करेंगे जो कि यीशु के खून के बारे में है। उसका पहले हिस्से की आज हम वजाहत करेंगे। We will be studying from the book of Luke. हम लूका की किताब लूका की अंजील उसके 22वें बाब की स्टडी करेंगे। Luke chapter 22 verse 7. Then came the day of unleavened bread, on which the Passover lamb had to be sacrificed. Verse 8. Jesus sent Peter and John, saying, Go and make preparations for us to eat the Passover. Amen. आमीन। लूका की अंजील उसका 22 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत। और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था। आयत नंबर 8। और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। आमीन। Amen. We want to give you context of the day of unleavened bread, which is sometimes called the Feast of Unleavened Bread or the Passover. मैं आज आपको एक सैकस्पाक देना चाह रही हूँ जो कि खमीरी रोटी की ईद के बारे में है। The Feast of Unleavened Bread is in the book of Exodus chapter 12. We will highlight a few things about the feast which is important for today's Bible study. खमीरी रोटी की ईद का जिक्र खरूज बाब 12 में है। आज हम बाइबली स्टडी के मुताबिक इस त्योहार की चंद अहम बातों पर रोशनी डालेंगे। The Feast of Unleavened Bread was done before the Israelites left Egypt. खमीरी रोटी की ईद तब मनाई जाती थी जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलने वाले थे। The Israelites had to slaughter the sheep or goat and put the blood on the sides and tops of the door frames. इस्राएलियों को ये हुक्म दिया गया कि वो बकरी या भेड़ को ज़िबा करे और उसका खून अपने फाटकों पर और अपने घरों के दोनों दरवाजों पर लगा ले। During the Feast of Unleavened Bread, the Israelites ate the meat roasted over the fire along with bitter herbs and bread made without yeast. इस ईद के दौरान इस्राएली आग पर बुना हुआ गोश्त, कड़वी जड़ी बूटियां और इसी के साथ खमीरी रोटी खाते थे। The same night, God judged Egypt, and the Israelites were spared because the blood that were on their door frames. इसी रात खुदा ने मिस्र पर अदालत की, लेकिन इस्राएली उस खून की वजह से बच गए जो उनके दरवाजों पर लगाया गया था। God gave the instruction to Moses that the Passover ceremony had to be observed throughout generations so that the generations may remember the Passover. आमीन। खुदा ने मूसा को ये हुक्म दिया कि ये फसा की ये रस्म नस्ल दर नस्ल मनाई जाए ताकि आने वाली नस्लें भी इसको याद रखें। So that the generations may remember that God passed over the houses of the Israelites in Egypt and spared the Israelites when he struck down the Egyptians. ताकि वो याद रखें कि खुदा ने किस तरह मिस्रियों को तबाह किया और इस्राएलियों के घरों को छोड़ दिया। In verse 7 and 8 that we just read, the disciples were preparing for the same feast of unleavened bread ceremony that God instructed to Moses. हम जिन आयात 7 और 8 को हमने अभी पढ़ा है, हम जब इसको देखते हैं कि उसने शागिर्द को इसी ईद के लिए बेखमीरी रोटी की ईद की तैयारी करने के लिए कहा है जिसका हुक्म खुदा ने मूसा को दिया था। Verse 9, where do you want us to prepare for it? They asked. Verse 10, he replied, as you enter the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him to the house that he enters. Verse 11, and say to the owner of the house, the teacher asks, where is the guest room where I may eat the Passover with my disciples? Verse 12, he will show you a large room upstairs, all furnished. Make preparations there. Verse 13, they left and found things just as Jesus had told them. So they prepared the Passover. Verse 14, when the hour came, Jesus and his apostles reclined at the table. Verse 15, and he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. Verse 16, for I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. Verse 17, after taking the cup, he gave thanks and said,
take this and divide it among you. Verse 18, for I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes. Verse 19, and he took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. Amen. आमीन। लूका की इंजील उसका 22 बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर हम 19 आयत तक तलावत करेंगे। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देख, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है, वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं? वो तुम्हें एक बड़ा भला खाना आरास्ता किया हुआ दिखाएगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक कि खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दे के, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आमीन। Amen. After the disciples ate the feast of unleavened bread, they had to eat another bread, which is the body of Jesus. जब शागिर्दों ने खमीरी रोटी की ईद खाई, उसके बाद उन्होंने रोटी खाई जो कि मसीह का बदन था। A transition took place, a change happened. एक तब्दीली वाक़या हुई, एक नया मरहला शुरू हुआ। Let's now get to the remembrance. अब हम यादगारी की तरफ आते हैं। When the Israelites were taking the feast of unleavened bread, they had to remember something. When Jesus gave his disciples his body to eat, they had to remember something. For both events, they had to remember something. जब इस्राएली खमीरी रोटी की ईद मनाते थे तो उन्हें एक बात याद रखनी थी। जब यीशु ने अपने शागिर्दों को अपना बदन दिया और उन्हें ये कहा था कि आपने एक बात याद रखनी है, उन्होंने ये बात याद रखनी थी। दोनों मौका पर उन्हें कुछ ना कुछ याद करना था। Let us start with unleavened bread. The instruction that God gave Moses was that they had to remember that God passed over the houses of the Israelites in Egypt and spared the Israelites when he struck down the Egyptians. The Israelites had to remember how God delivered them from Egypt. आमीन। आइए पहले खमीरी रोटी की बात करते हैं। खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि वो याद रखे कि खुदा ने मिस्र में इस्राएलियों के घरों के ऊपर से गुजर गया, जबकि उसने मिस्रियों को हलाक किया और इस्राएलियों को बचाया। इस्राएलियों को याद रखना था कि खुदा ने किस तरह उनको मिस्र की गुलामी से आजाद किया। Let us now move to the body of Jesus. Jesus that night mentioned that when the disciples eat his body, which is the bread of life, they need to remember him. Do this in remembrance of me. That is the difference between the two ceremonies. आइए अब यीशु के बदन की तरफ बढ़ते हैं। उस रात यीशु ने जिक्र किया कि जब शागिर्द उसके बदन को खाएं जो जिंदगी की रोटी है, और तो उन्हें ये याद करना था कि ये मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। यही दोनों रसूमात के दरमियान फर्क है। Verse 20. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my body, which is poured out for you. Amen. आमीन। आयत नंबर 20, लूका के इंजील उसका 22 बाब उसकी आयत नंबर 20। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन।
Amen. The new covenant of Jesus was introduced that night. New covenant was introduced that night. The new covenant is in the blood of Jesus. यीशु का अहद उसी रात मुतारफ करवाया गया। नया अहद उसी रात शुरू हुआ। ये नया अहद यीशु के खून में है। The disciples ate bread, which represented the body of Jesus, after they ate feast of unleavened bread. Why? Because the covenant of Moses ended that night and the new covenant was introduced, which is the covenant of Jesus. शागिर्दों ने खमीरी रोटी की ईद खाने के बाद वो रोटी खाई जो यीशु ने उनको दी थी, जो यीशु के बदन के इलामत के तौर पर थी। क्यों? क्योंकि उस रात मूसा का अहद खत्म हुआ और एक नया अहद शुरू हुआ जो कि यीशु का अहद है। Remember, with the feast of unleavened bread, the requirements were bread without yeast, bitter herbs, and roasted meat. I believe that Peter and John prepared the same things for the feast of unleavened bread. याद रखें कि खमीरी रोटी की ईद के लिए उन्हें खमीर की रोटी, कड़वी जड़ी बूटियां और बुना हुआ गोश्त की जरूरत होती थी। मेरे यकीन है, मुझे ये लगता है कि शायद पतरस और यूहन्ना भी इन्हीं चीजों का एहतमाम कर रहे थे जब वो इस ईद की तैयारी कर रहे थे। In verse 17, it is clear that Jesus drank the fruit of the vine. The fruit of the vine is grapes, so they drank grape juice. आयत नंबर 17 में यह वाजिया है कि यीशु ने अंगूर का फल पिया, यानी अंगूर का फल अंगूर का रस है। It is interesting that the Passover of the Israelites happened at night. They left Egypt at night. Jesus introduced his new covenant at night. And after that introduction, Jesus was arrested, and that led to his crucifixion and death. ये दिलचस्प बात है कि इसराइलियों का फसा रात के वक्त हुआ और जब वो रात ही को मिस्र से निकाले गए, यीशु ने भी अपना नया अहद रात के वक्त मुतारफ करवाया और इसके तारुफ के बाद यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पीछे वो अपनी सलीब जिसके लिए उसे सलीब दी गई और उसकी मौत हुई। The new covenant of Jesus is in his blood. King James Version uses the word testament instead of the word covenant, and the meaning of the word covenant in Greek is contract. यीशु का नया अहद उनके खून में है। किंग जेम्स वर्जन में कवनेंट की बजाय टेस्टामेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो कि यूनानी जुबान में इसका मतलब है मुआहिदा या अहद। We are now in the contract with God, and that contract is in the blood of Jesus. अब हम खुदा के साथ एक नए अहद में हैं और ये अहद यीशु के खून में कायम है। That is where we will end today. अब हम खुदा के साथ इस नए अहद में हैं और जो कि खुदा के खून में शामिल है। In summary, today was the introduction of the new series called The Blood of Jesus. खुलासा, आज हम यीशु के खून के अनवान की नई सीरीज का तारुफ था। We learned that number 1, the feast of unleavened bread ended, and Jesus introduced a new ceremony of eating his body and drinking his blood. आज हमने सीखा नंबर 1 पर खमीरी रोटी की ईद खत्म हुई और यीशु ने एक नई रस्म मुतारफ करवाई जिसमें उसके बदन का खाना और उसके खून का पीना शामिल है। Number 2, we learned that when we eat the body of Jesus, we need to remember Jesus. When eating the body of Jesus, our focus should be on Jesus. Our memory should be on Jesus. हमने सीखा कि जब हम उसके बदन को खाते हैं तो हमें उसकी याद में उसके साथ शरीक होना है, और हम देखते हैं कि जिस तरह हम उसके खून को पीते हैं तो हमें उस पर तवज्जो होनी चाहिए। हमारी तवज्जो, हमारी याद यीशु पर मरकूज होनी चाहिए। Number 3, we learned that Jesus gave the disciples a new covenant. The new covenant in the blood of Jesus. The disciples of Jesus entered the new covenant by drinking the fruit of the vine. हमने सीखा कि यीशु ने शागिर्दों को एक नया अहद दिया और यह नया अहद यीशु के खून में है। यीशु के शागिर्द अंगूर के फल को पीकर उस नए अहद में शामिल हुए। The time that we are in today, we are no longer under the covenant that God gave Moses, but we are under the covenant of Jesus. That covenant is in the blood of Jesus.
आज हम जिस जमाने में हैं, हम इस अहद के तहत जो खुदा ने मूसा को दिया था उसमें नहीं, बल्कि हम यस्सु के अहद में हैं, यस्सु के तहत हैं, और जो खून यस्सु ने हमें दिया हम उसमें कायम हैं। Thank you so much for joining us today. God bless you. आज हमारे साथ जारी होने के लिए, आज हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन। Amen. My sister, please close in prayer. ओके सिस्टर। हालेलुया। असली अब जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन को खलक करने वाले खुदा, कुल कायनात का इख्तियार तेरे हाथ में है। रब्बल अफ़वाज, क्या ही भला है सबको तेरी शफकत का इज़हार करना, रात को तेरी वफादारी का। तेरे नाम का शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका के लिए तूने हमारी जिंदगी में बख्शा कि मिल बैठकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद कर सके, क्योंकि तू ही तारीफ और तमजीद के लायक खुदा है, तू ही इज्जत और जलाल के लायक खुदा है। तू जो कल आज रब तक यकसा खुदा है, तू जला महदूद खुदा है, तू जला तब्दील खुदा है, तो जो खुदाई कदुस है, तो जो खुदाई सलूस है, तो जो खुदा रहीम है, तो हमारी मिन्नत इल्तिजा फरियाद पर कान लगाने वाला खुदा है। शुक्रगुजारी करती हूँ आज के पैगाम के लिए खुदा जो हमने दुनिया के कोने कोने तक शेयर किया। खुदा रब्बल अफ़वाज, जितने लोग इस मैसेज को देखें, इस मैसेज को सुने, खुदा इसके वसीला से बड़ी बरकत को, बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव कर सके। खुदा कितने लोग पाकिस्तान में या साउथ अफ्रीका में या जहाँ कहीं भी इस मैसेज को देखे, खुदा इसके वसीला से अपनी जिंदगियों को तब्दील करने वाले बने। खुदा उनकी जिंदगियों को तब्दील करना खुदा, ताकि वो तेरे नाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके और तेरे नाम में बढ़ते चले जाए और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दे, क्योंकि तू ही इज्जत और जलाल के लायक खुदा है, तू ही तारीफ और तमजीद के लायक खुदा है। रब्बल अफ़वाज, ईमान रखकर तमाम बरकत तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ। आमीन। Amen. Thank you, sister.